हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्लाइकोलिसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजी फील्ड में और बायोलॉजी फील्ड पूरी बायोलॉजी सब्जेक्ट में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में ग्लाइकोलिसिस क्या है। First of all, I would like to tell you that I'm teaching this glycolysis by using my graphic tablet. So let's start with a glycolysis. You know, glycolysis has another name also. Glycolysis, also known as the EMP pathway, because it was studied by collectively three scientists, and that's why it is called EMP pathway. मैं आपको उन लोगों के साइंटिस्टों के नाम बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में जाते हैं. Glycolysis was studied by three scientists, and the name of scientist is, first one is Gustav Embeden. Second one is Otto Meyerhoff, and third one is Jacob Carol Pernas, and that's why glycolysis is also known as the EMP pathway. E stand for Gustav Embeden, M stand for Otto Meyerhoff, and P stand for Jacob Carol Pernas. Yes, glycolysis. अभी glycolysis तो EMP पाथवे को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं वैसे? एक्चुअली इफ यू सी दिस वर्ड, ग्लाइको मीन्स glucose, got it, and lysis means breakdown. So simple logic is that breakdown of glucose is called glycolysis. अगर हम definition देखें, so glycolysis is nothing but breakdown of glucose into two molecule of pyruvate, or you can say pyruvic acid, into two molecules of pyruvate or pyruvic acid. This is called glycolysis. ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस को अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं. यस, ग्लाइकोलिसिस को अलग अलग टीचर अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं. मैं अगर आपको इनके डेफिनेशन ये समझाऊं तो ये देखिए, ये सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन है. अगर हम थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन भी देखें तो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस इज एन biological pathway in which six molecule sorry glycolysis is a biological pathway in which six carbon containing molecules such as glucose undergo process called oxidation. Oxidation simply means breakdown and turn into two molecule of pyruvate, and pyruvate is generally containing 3 carbon. So single pyruvate is containing 3 carbon, and there are two molecules of 3 carbon. There are two molecules of pyruvate. So total it becomes again 6 carbon. So 6 carbon containing molecules such as glucose undergo breakdown or oxidation and turn into the two molecules of pyruvate. And both pyruvate is composed by 3 carbon. So this is the definition of glycolysis, and glycolysis was studied by the Embeden, Meyerhoff and Pernas. That's why it is also called EMP pathway. तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे. अगर आप नीट के स्टूडेंट हो और आप ग्लाइकोलिसिस को लर्न करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें से अगर एक भी एमसीक्यू आ जाता है तो आपको 4 मार्क्स के लिए वो एमसीक्यू होगा. मान लो अगर आपको पूछा जाता है fructose 6 phosphate in presence of enzyme phosphofructose kinase get converted into,
तो आपको ये पाथवे अगर आपने पूरा लर्न किया होगा तो ही आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है, तो ही आपको ये चीजें याद रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ अब हमें इसे लर्न कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, complete process of glycolysis is further divided into two steps. Step 1, which is called preparatory, and step 2, which is called oxidative phase. So this one is preparatory phase. You can say 1 or you can say A, and this one is oxidative phase or you can say payoff phase. Yes. सो हमारे सामने ग्लाइकोलिसिस के दो स्टेप हैं, ए जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और बी जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव और पे ऑफ फेज। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या होता क्या है। इन अ प्रिपरेटरी फेज देयर इज एटीपी इज कंज्यूम, ओके, एटीपी इज कंज्यूम। और पे ऑफ फेज में क्या होता है, एटीपी इज प्रोड्यूस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पे 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और यहाँ पे 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर हम ये देखें टोटली तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मिलते हैं, हमें 2 एटीपी मिलते हैं। समझ गए कैसे, ये देखिए, इन ग्लाइकोलिसिस इन पेयोफ फेज वी आर जनरेटिंग 4 एटीपी मॉलिक्यूल बट 2 एटीपीज आर यूज ड्यूरिंग द ए फेज, करेक्ट। तो 2 एटीपी अगर 4 में से चले जाएं तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में से हमें कितने एटीपी मिलते हैं, 2 ही एटीपी में मिलते हैं। यस। तो अब इस पाथवे को लर्न कैसे करते हैं, मैं आपको उसकी एक टेक्निक बताता हूं। तो ऐसे कैसे बोलते हैं, देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फर्स्ट रिएक्शन आई एम टॉकिंग, ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर इनटू द फॉस्फोरिलेशन 1 in presence of enzyme hexokinase and get converted into glucose 6-phosphate, where 1 phosphate from ATP remove and ATP get converted into ADP. ATP stand for adenosine triphosphate, which is an energy rich compound, and ADP is nothing but adenosine diphosphate molecule. ADP stand for adenosine diphosphate molecule. Clear है? So ATP is adenosine triphosphate and ADP stand for adenosine diphosphate molecule. तो हमें अगर आपको ये 10 जितने भी ये फेजेस हैं, जितने भी स्टेप, अगर हमको इनको याद करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके लर्न कर लेते हो ना इस पाथवे को, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। ये देखिए, इसमें आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में सबसे पहले रॉ मटेरियल का नाम यूज कीजिए, रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन सा है हमारा, यहाँ पे ग्लूकोज। उसके बाद आप क्या यूज कीजिए, नेम ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सी, यहाँ पे रिएक्शन है यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन 1, और उसके बाद क्या यूज करोगे आप, नेम ऑफ एंजाइम, ठीक है। और हमारी यहाँ पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, और उसके बाद क्या यूज करोगे आप, प्रोडक्ट का नाम डायरेक्टली। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, ये आ गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और उसके बाद अगर एटीपी एडीपी ये कुछ कन्वर्जन है तो आपको ये बाद में यूज करना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अब ये वाली फॉर्मूला याद रखिए। ग्लूकोज is a 6 carbon containing molecule enter into phosphorylation 1 in presence of enzyme hexokinase and get converted into glucose 6-phosphate, where 1 phosphate from ATP is removed and ATP get converted into ADP. तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या यूज किया, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो मैंने किसके बारे में डिस्कस किया, पहले मैंने किसके बारे में बताया आपको, रॉ मटेरियल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल है हमारा ग्लूकोज। फिर हमने क्या बताया, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच एंटर इनटू फॉस्फोरिलेशन 1। तो फॉस्फोरिलेशन 1 क्या है, नेम ऑफ रिएक्शन। फिर इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम, तो हेक्सोकाइनेस क्या है, नेम ऑफ एंजाइम, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो ये देखिए प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे डिस्कस करना है, फर्स्ट नेम ऑफ रॉ मटेरियल, देन नेम ऑफ रिएक्शन, देन नेम ऑफ एंजाइम एंड फाइनली प्रोडक्ट। उसके बाद अगर ये कुछ है साइड में तो उसके बारे में डिस्कस करना है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये वाले फॉर्मूले से जाइए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर इनटू आइसोमराइजेशन in presence of enzyme phosphoglucose isomerase and get converted into fructose 6 phosphate। ये हो गई सेकंड स्टेप, ये वाली हो गई फर्स्ट स्टेप, ये वाली हो गई सेकंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट आया है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। तो आपको ऐसे ही पूरी की पूरी पाथवे लर्न करते जानी है, मैं आपको बता देता हूं। अब थर्ड स्टेप देखिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट enter into phosphorylation second in presence of enzyme phosphofructose kinase and get converted into fructose 1,6 bisphosphate, where again one phosphate from ATP is removed and ATP get converted into ADP. This is third step. Now enter into fourth step. देखिए आप, मैं जब भी रिएक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस के बारे में, तो मैं यही फॉर्मूले से जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो फोर्थ स्टेप बता रहा हूं, आप उस फोर्थ स्टेप को इस फॉर्मूले से मैच कीजिए। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यस ये देखिए रॉ मटेरियल, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंटर इनटू, नेम ऑफ रिएक्शन, एंटर इनटू क्लीवेज स्टेप in presence of enzyme aldolase and get converted into प्रोडक्ट सच एज अ DHAP, गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट सच एज अ DAP। ये प्रोडक्ट है, ये देखिए DHAP प्रोडक्ट, यस। तो ये वाली होगी फोर्थ स्टेप। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP स्टैंड फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ओके। और ये वाला जो है PGL, तो PGL का फुल फॉर्म होता है 3-phosphoglyceraldehyde, और यू कैन से ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरल, ओके। अब ये देखिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट enter into isomerization step in presence of enzyme phosphotriose isomerase and get converted into product called PGAL. Remember, this process is a isomerization, means DHAP can convert into PGAL, and even though PGAL can reverse converted into DHAP. PGAL can reverse converted into DHAP. You know why? Because DHAP, dihydroxyacetone phosphate, and PGL, 3-phosphoglyceraldehyde, both are 3 carbon containing compound, and one more similarity is that both are isomer molecule of each other, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे ही होते हैं, 3 कार्बन वाले होते हैं, और ये दोनों आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, इसके लिए मैंने कहते हैं क्या, आइसोमर मॉलिक्यूल। और ये एक दूसरे के आइसोमर है, इसके लिए DHAP का PGL और PGL का DHAP, ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब हम DHAP को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब हम PGL को कंटिन्यू करेंगे। ये 5 स्टेप हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार एक फॉस्फेट का लॉस हुआ, यहाँ पे दूसरी बार फॉस्फेट का लॉस हुआ, मतलब 2 ATP हमने यहाँ पे, 2 ATP का हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, लॉस कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ATP को प्रोड्यूस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-phosphoglyceraldehyde कौन से स्टेप में जा रहे हैं, अब 6th वाले स्टेप में जा रहे हैं। 3-phosphoglyceraldehyde enter into oxidation and phosphorylation in presence of enzyme PGAL hydrogenase। फुल फॉर्म अगर बोले तो क्या, 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase। फिर से सुनिए, PGAL, 3-phosphoglyceraldehyde enter into oxidation and phosphorylation in presence of enzyme 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase and get converted into 1,3-bisphosphoglycerate, where 2 NAD accept atmospheric phosphate and turn into NADH2। अभी NAD का मतलब होता है, NAD means
nicotinamide adenine डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हुआ, किसका फुल फॉर्म है ये है NAD का। अब हम ये लिखते हैं NADH2। तो जब ये H होते हैं तो H का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैं H आपको बता दे रहा। H मतलब हाइड्रोजिनेस, मतलब क्या होगा फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस। किसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये, NADH। ठीक है, समझ गया। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं स्टेप। 3-phosphoglyceraldehyde enter into oxidation and phosphorylation in presence of enzyme 3-phosphoglyceraldehyde hydrogenase and get converted into 1,3-bisphosphoglycerate. Now seventh step 1,3-bisphosphoglycerate enter into ATP generation in presence of enzyme phosphoglycerate kinase and get converted into 3-phosphoglycerate where ADP accept one phosphate and convert into ATP. So there is a gain of ATP. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ATP का लॉस हुआ था, यहाँ पे भी ATP का लॉस हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ATP हमें मिलते हैं, देर इज अ गेन ऑफ 2 ATP। और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 ATP का गेन होगा। तो ये दो जगह पर ATP का गेन होता है, यहाँ पे 2 ATP मिलते हैं, यहाँ पे 2 ATP मिलते हैं। कितने ATP हो गए, 4। और 4 में से यहाँ पे 2 ATP हमने लॉस कर लिए, तो कितने ATP बचे, 4 में से 2 ATP चले गए, मतलब कितने बचे से 2 ATP बचे। तो पूरे ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP मिलते हैं। तो चलिए 8th स्टेप पे जाते हैं हम। 3-phosphoglycerate enter into isomerization in presence of enzyme phosphoglycerate mutase and get converted into 2-phosphoglycerate. Now 9th step, 2-phosphoglycerate enter into dehydration in presence of enzyme enolase and get converted into phosphoenol pyruvate. It is, in short, it is called PEP, phosphoenol pyruvate। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं PEP, phosphoenol pyruvate। Now last step, yes, see, phosphoenol pyruvate PEP enter into ATP generation second in presence of enzyme pyruvate kinase and get converted into two molecule of 3 carbon containing compound such as a pyruvate. So finally ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो गया, पायरुवेट में। और यही हमारी डेफिनेशन थी। यस, हमने क्या देखा था, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, this is called glycolysis, or you can say 6 carbon containing glucose molecule undergo oxidation in presence of and get converted into 2 molecules of pyruvate which is containing 3 carbon containing compound. So this complete process is ग्लाइकोलिसिस। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं शॉर्ट में बताता हूं एक स्टेप। आपको सबसे पहले क्या करना होता है इस ग्लाइकोलिसिस में, आपको सबसे पहले जो जिसके बारे में डिस्कस करना होता है वो होता है हाईलाइट नहीं करना मुझे, ओके ग्रीन कलर ले लेता हूं। सी, आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में बोलना पड़ता है, मतलब ग्लूकोज, उसके बाद नेम ऑफ रिएक्शन मतलब ये फॉस्फोरिलेशन 1, उसके बाद नेम ऑफ एंजाइम मतलब ये सॉरी हेक्सोकाइनेस, और उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये वाला। तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे ग्लूकोज is a 6 carbon containing compound enter into the process called phosphorylation phosphorylation 1 in presence of enzyme hexokinase get converted into product called
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको यही स्टेप बार बार, मतलब इसी फॉर्मूले से आपको बार बार आगे की प्रोसेस करती जानी है। देखिए, ग्लूकोज इज अ 6 phosphate एंटर इनटू आइसोमराइजेशन in presence of enzyme phosphoglucose isomerase and get converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate enter into phosphorylation second in presence of enzyme phosphofructose kinase and get converted into fructose 1,6 bis phosphate, where 1 phosphate is removed from ATP, so ATP get converted into ADP. आपको इसी फॉर्मूले से स्टार्ट से लेके एंड तक ये कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। और जैसे ही आप एंड पे आ जाओगे पायरुवेट पे, आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पूरी की पूरी हो जाएगी। यस, आई डोंट थिंक सो ये हार्ड है। जो है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इजीली समझाना चाहता था। शायद किसी स्टूडेंट को सबसे पहले इजीली समझ गया हो, लेकिन शायद बाद में कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो मेरा कोई भी इरादा नहीं कि आपके माइंड में कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करूं। सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि आपको ग्लाइकोलिसिस इजीली समझ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। जनरली स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीन ही चीज़ें स्टडी करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल होता है क्रेब्स साइकिल को, वो होता है एसिटिल कोए। तो ग्लाइकोलिसिस में तो हमने पायरुवेट बनाया हुआ था, और अब आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो एसिटिल कोए से। तो पायरुवेट का एसिटिल कोए में कन्वर्जन कैसे हो गया? तो पायरुवेट का एसिटिल कोए में कन्वर्जन इस वाली स्टेप से होता है, लिंक रिएक्शन से, ठीक है। अब हम इसे लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों के बीच में आती है। Link reaction takes place after the glycolysis but before the Krebs cycle, and it is linking between glycolysis and Krebs cycle. That's why it is called link reaction. It is also known as acetylation because we are converting pyruvic acid into acetyl CoA. So we are actually making acetyl CoA in this state. That's why it is called acetylation. It is also sometimes considered as a pyruvate decarboxylation, and it is also known as a gateway step because it is a entry from glycolysis to Krebs cycle. Let's start. We know that this is the mitochondria, and inside we are not going to enter inside the mitochondria because we need this space. This is outer membrane of mitochondria, this one is inner membrane of mitochondria, and this is interspace of mitochondria. अब ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस हो, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जनरली व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ glycolysis, we got the product called pyruvate, and now pyruvate want to enter into Krebs cycle, but Krebs cycle generally start with a acetyl CoA. हमने पहले स्टेप की ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट आ गया पायरुवेट, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमने कहां पे की थी? हमने ग्लाइकोलिसिस की थी साइटोप्लाज्म में, और उसका प्रोडक्ट आ गया पायरुवेट। अब पायरुवेट मॉलिक्यूल को डायरेक्टली जाना है क्रेब्स साइकिल में, लेकिन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें करना पड़ेगा? एसिटिल कोए में। और क्यों एसिटिल कोए में करना पड़ेगा? क्योंकि एसिटिल कोए यहीं से शुरुआत होती है क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल या तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या है बेसिकली लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन इज एन गेटवे स्टेप between glycolysis and Krebs cycle. It is after glycolysis and before Krebs cycle. What happen in this phase?
In this step, we are going to convert pyruvate into acetyl-CoA just because acetyl-CoA is the raw material or initial molecule to enter into the Krebs cycle, and therefore we are converting pyruvic acid into acetyl-CoA just to enter inside the Krebs cycle, enter inside the mitochondria. Now, where does acetylation happen? Acetylation happen between two membranes of mitochondria. You can call interspace of mitochondria और इनर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम ये देखते हैं होता क्या है और कैसे किया जाता है. सी, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते समय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है एंड दिस हाइड्रोजन is accepted by hydrogen acceptor molecule such as NAD. You can say NADP. Now, once they accept hydrogen, they will convert into NADPH2, and this will be called एसिटिल फ्रैक्शन. इसे हम क्या कहेंगे? एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा टुकड़ा, एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा पीस. मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते समय हाइड्रोजन निकल जाता है और ये हाइड्रोजन, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है और इस वाले हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं NADP. तो जैसे NADP हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है NADPH2. इसे हम जनरली कहते हैं एसिटिल फ्रैक्शन, मतलब एसिटिल ग्रुप का एक छोटा सा टुकड़ा. और जब ये एसिटिल फ्रैक्शन कोएंजाइम A के साथ जुड़ जाता है तब क्या बनता है? एसिटिल कोए. तब क्या बनता है? एसिटिल कोए. तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा आ गया एसिटिल कोए. और ये कहां बनता है? बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो आप ये देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. दिस हाइड्रोजन कंबाइंड विथ NADP and turn into NADPH2. This is called acetyl fraction. Acetyl fraction, and when it combined with coenzyme A, it get converted into acetyl CoA. ये तो मैंने बेसिकली ऐसे ही डायग्रामेटिकली बताया आपको. तो आप क्लियरली ये बात आपके सामने हो गई अब प्रूफ. लिंक रिएक्शन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में है. गेटवे स्टेप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो गेट की एंट्री है. ग्लाइकोलिसिस के गेटवे से निकल के क्रेब्स साइकिल के गेट के अंदर एंट्री करने की गेटवे स्टेप है. इसे हम एसिटिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एसिटिल कोए फॉर्म होता है, इसके लिए हम इसे एसिटिलेशन कहते हैं. इसे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं कभी कभी. होता क्या है इसमें? ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट फॉर्म होता है और पायरुवेट को जाना है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाने के लिए उसे इसे कन्वर्ट होना है एसिटिल कोए में. सो पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, एसिटिलेशन और गेटवे स्टेप. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी. आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है क्रेब्स साइकिल. जैसे ही बायोएनर्जेटिक्स पाथवे में हम ग्लाइकोलिसिस को क्रॉस करके लिंक रिएक्शन को क्रॉस करके एंट्री करते हैं तब हम आते हैं क्रेब्स साइकिल में. तो क्या होता है क्रेब्स साइकिल में आपको बताता हूं. क्रेब्स साइकिल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय सर Hans Crab and that's why it is called Krebs cycle. Krebs cycle को दूसरे नाम से भी पहचानते हैं. Krebs cycle is also known as a TCA. What does it stand for? TCA? TCA stand for tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle. It is
a tricarboxylic acid cycle because the first product produced in this cycle is of 3 carbon. That's why it is called tricarboxylic acid cycle. It is also known as a citric acid cycle. Why it is called citric acid cycle? Because first product produced in this pathway is a citrate. आपको इनके साइंटिफिक रीजन पता होने चाहिए, ठीक है? जो नीट के स्टूडेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए क्रैब साइकिल सर हेंस क्रैब ने डिस्कवर की हुई थी। इसे टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट वो 3 कार्बन वाला है, इसके लिए हम इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इट इज आल्सो कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज सिट्रेट। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ एक चीज बता दूं। देखिए, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तब उसके साथ जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, करेक्ट? फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या आता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट आता है पायरुवेट। और अब इस पायरुवेट को एंट्री करनी है क्रैब साइकिल में। तो पायरुवेट डायरेक्ट क्रैब साइकिल में तो एंट्री नहीं कर सकता है, तो उसे किस में एंट्री करनी पड़ेगी? लिंक रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन में एंट्री करने के बाद मैंने आपको लिंक रिएक्शन पढ़ा दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा दिया हुआ है। तो लिंक रिएक्शन होने के बाद पायरुवेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है? एसिटिल कोए में हो जाता है। और ये एसिटिल कोए कहाँ एंट्री करता है? क्रैब साइकिल में। तो कैसे एंट्री करता है चलिए देखते हैं। हाँ, सी this one is pathway. Yes, this pathway is Krebs cycle. लेकिन मैंने इस पाथवे को फोटोशॉप में थोड़ा एडिट किया हुआ है। कैसे एडिट किया हुआ है देखिए, जनरली अगर हम इंटरनेट से डायग्राम यूज करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है एसिटिल कोए से, ऐसे घूमती है, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। क्यों? देखिए, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? तब होती है ग्लाइकोलिसिस और उसका प्रोडक्ट क्या आता है? पायरुवेट। लेकिन पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि क्रेब साइकिल में एंट्री करने के लिए उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? एसिटिल कोए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और एसिटिल कोए में कन्वर्ट होने के लिए उसे कौन से स्टेप में एंट्री करनी पड़ेगी? एसिटिलेशन, या तो आप कहो लिंक रिएक्शन, या तो आप कहो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और उसका कन्वर्जन एसिटिल कोए में हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया, ठीक है? Glucose enter into glycolysis, turn into pyruvate, and pyruvate enter into link reaction, turn into acetyl-CoA, then acetyl-CoA enter into Krebs cycle. तो ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोलिसिस में जाता है वो आप मेरे ग्लाइकोलिसिस टॉपिक में देख लीजिए, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? अब हम ये पाथवे स्टडी कैसे करते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। So remember, when you are studying this pathway, you have to remember one formula, and this is the formula to learn this pathway. What is this formula? When you are talking this pathway, you have to talk first about raw material. ठीक है, पहले आपको रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आपको रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आपको एंजाइम के बारे में डिस्कस करना है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो ये पाथवे आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और एक चीज और डिफिकल्टी बता दूं मैं आपको, जब ये आप पाथवे लर्न करोगे तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा अगर ये पाथवे लर्न करूँ इससे तो अच्छा है मैं इतने टाइम में मैं दूसरा एक चैप्टर पढ़ लूँ। लेकिन ये आपको पाथवे लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता ही है। मतलब 8 मार्क्स के लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को कि नीट के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी में 4 मार्क्स और 8 मार्क्स कितने वैल्यूएबल रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन हमारी कंडेंसेशन से। टोटल कितने रिएक्शन है ऐसे? फर्स्ट टू 9 रिएक्शन है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रिएक्शन। अब आप ये जो फॉर्मूला है मेरा वो फॉर्मूला याद रखें। फर्स्ट रॉ मटेरियल, ये वाला है रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद रिएक्शन,
तो कंडेंसेशन ये रिएक्शन का नाम है। फिर एंजाइम, तो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, और फिर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आता है सिट्रेट। तो ऐसे हम गोल घूमेंगे। लेट्स स्टार्ट। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल एंटर इनटू द कंडेंसेशन प्रोसेस। Acetyl CoA molecule is a raw material, enter into condensation as a reaction। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सी, acetyl CoA molecule enter into condensation reaction, enter into condensation reaction। फिर क्या डिस्कस करना है? एंजाइम। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सी है? साइट्रेट, साइट्रेट सिंथेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट डिस्कस करना है, प्रोडक्ट का नाम है सिट्रेट। देखो पहला प्रोडक्ट सिट्रेट है ना, सिट्रेट 3 कार्बन वाला है, इसीलिए इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मींस TCA। और सिट्रेट फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए हम इसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। हो गया? सब कंफ्यूजन जो थे वो क्लियर हो गए आपके? ठीक है, तो अब वैसे ही हम फर्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करके 9th स्टेप तक कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल एंटर इनटू फर्स्ट स्टेप of Krebs cycle called condensation in presence of enzyme citrate synthase and get converted into product called citrate where water is added inside. Now citrate enter into isomerization which is further divided into dehydration A step and hydration B step. First, citrate enter into dehydration in presence of enzyme aconitase where water is removed out because of dehydration and citrate get converted into cis aconitate. Cis aconitate enter into hydration where water is added inside in presence of enzyme aconitase. Same enzyme in presence of aconitase get converted into diisocitrate. Now diisocitrate enter into third step. This is called oxidation. In presence of enzyme isocitrate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase and get converted into oxalosuccinate। आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है? मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है diisocitrate in presence of enzyme isocitrate dehydrogenase get converted into oxalosuccinate with the help of, तो आपको ये रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो एमसीक्यू इसके ऊपर क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के ऊपर ऐसे ही आते हैं, तो इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा पाथवे लर्न होना चाहिए। और जैसे ही आप पाथवे लर्न कर लेते हो तो ये 4 फॉर्मूले याद रखिए। अगर आप ये 4 फॉर्मूले याद रख लेते हो तो ये पाथवे पूरा इजीली लर्न हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने किया था हमारे टाइम पे, ठीक है? फोर्थ स्टेप, oxalosuccinate enter into the process called decarboxylation in presence of enzyme oxalosuccinate decarboxylase and get converted into alpha ketoglutarate. Now alpha ketoglutarate enter into oxidative decarboxylation in presence of enzyme alpha keto dehydrogenase and get converted into succinyl CoA where NAD combined with hydrogen and turn into NADH2। ये प्लस है तो मतलब 2, या तो 1 भी रहने दो, NADH and plus carbon dioxide remove as a byproduct। Next, succinyl CoA enter into the process called hydration and phosphorylation in presence of enzyme succinate thiokinase and get converted into succinate. Succinate enter into the oxidation in presence of enzyme succinic dehydrogenase and get converted into fumarate. Fumarate enter into the hydration in presence of enzyme fumarase and get converted into malate, which is the second last product. And malate enter into the last step of Krebs cycle called oxidation where in presence of enzyme malate dehydrogenase and get converted into last product of Krebs cycle, that is oxaloacetate, a 4 carbon containing compound where again NAD get bind with hydrogen and turn into NADH. NAD stand for
NAD, NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं उसके पीछे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेस। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट आ गया, कौन सा, ऑक्सैलो एसीटेट। और ये भी एक प्रकार का एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 2 एटीपी। टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 2 एटीपी। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी फॉर्म हुए थे, लेकिन उसमें से 2 एटीपी का लॉस होता है, तो फाइनली कितने एटीपी बच जाते हैं, 2। लेकिन क्रेब्स साइकिल में एटीपी का लॉस नहीं होता है, सिर्फ 2 एटीपी गेन होते हैं। सो दिस इज अबाउट क्रेब्स साइकिल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूले को यूज करो तो फिर से एक बार देख सकते हो आप। यस, मैं आपको फॉर्मूले का यूज करके बताता हूँ। एसिटिल कोए मॉलिक्यूल enter into condensation process in presence of enzyme citrate synthase and get converted into product called citrate। तो ये वाली रिएक्शन आपको ऐसी लर्न करनी है। तो ये फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से आप पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को इजीली लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and today I am going to teach you one of the most important topic of the chapter called respiration in the plants from the 11th standard CBSE 14 number chapter, and our topic is about terminal oxidation. Yes, terminal oxidation can be synonymously called by 5 names. Terminal oxidation को 5 नामों से पहचानते हैं। Terminal oxidation, it is also known as an electron transport chain, also known as an electron transport system, also known as oxidative phosphorylation and respiratory chain. Yes, I'll tell you why all these names are there. Yes, let's begin with this topic. I'll tell you one by one why all these names are given, what are their scientific names. So first of all, about terminal oxidation. So what is terminal oxidation? Oxidation of coenzyme into their natural forms. It is called terminal oxidation. What does it mean? Remember guys, at the time of glycolysis as well as at the time of Krebs cycle, mainly hydrogen ions or hydrogen molecules is given out. Hydrogen molecule is given out. ग्लाइकोलिसिस और मैं आपको ये डेफिनेशन समझा रहा हूं। ये देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन से होते हैं? कोएंजाइम होते हैं NAD, यस, FAD। सो ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है, इनटू देयर नेचुरल फॉर्म, इट इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब ये फिलहाल NAD है और FAD है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे NADH2 और FADH2, मतलब कोएंजाइम की कन्वर्जन हो जाएंगे एक्टिव एंजाइम में। और कुछ टाइम के बाद ये फिर से हाइड्रोजन में इनमें से निकल जाएगा और NADH2 में से NAD हो जाएगा और FADH2 में से FAD हो जाएगा। तो जैसे थे वैसे ही हो गए। कोएंजाइम पहले हैं, उनके नेचुरल फॉर्म में फिर से वो आ जाते हैं कोएंजाइम, इसके लिए हम इसे कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। फिर से एक बार सुन लीजिए, oxidation of coenzyme into their natural form is known as a terminal oxidation. Now these are NAD and these are FAD. See, I'll prove this definition. During the process of
glycolysis and during the process of Krebs cycle, hydrogen molecules are generally removed, and these hydrogen molecules are accepted by, this hydrogen molecule is accepted by hydrogen acceptor molecule. And who is hydrogen acceptor molecule? NAD and FAD. NAD stand for nicotinamide. I don't have a much space because I am going to use complete whiteboard for teaching this topic. Therefore, I am just telling you orally full form. आप वीडियो को पॉज करके फुल फॉर्म लिख सकते हो. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, and FAD stand for flavin adenine dinucleotide. Nicotinamide adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide. After accepting hydrogen, yes, after accepting hydrogen, they turn into NADH2 and FADH2. Yes. Now what is the full form of NADH2? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. अगर पीछे हाइड्रोजन लग जाता है तो क्या हो जाता है? हाइड्रोजनेस. एंड FADH2 मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पीछे हाइड्रोजन आ गया मतलब हाइड्रोजनेस. सो पहले क्या था? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. आफ्टर एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन इट टर्न इनटू NADH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजनेस. और पहले FAD थे flavin adenine dinucleotide. After accepting hydrogen, they turn into flavin adenine dinucleotide hydrogenase. And after some time, again hydrogen is removed. And after removing hydrogen, this NADH2 again turn into NAD, and this FADH2 again turn into FAD. यस. तो देखो पहले जैसे थे वैसे फिर से वैसे ही हो गए. ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम इनटू देयर नेचुरल फॉर्म. ये फिर से अपने नेचुरल फॉर्म में आ गए. इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन. ठीक है, समझ में आ गया? टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मतलब है कि NAD और FAD ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में से निकलने वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद NADH2 और FADH2 में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से उनमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो NADH2 में से फिर से NAD और FADH2 में से फिर से FAD कन्वर्ट हो जाते हैं. तो पहले जैसे थे NAD FAD, अब फिर से वैसे ही हो गए. ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम इनटू देयर नेचुरल फॉर्म इज नोन एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेशन. टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऐसे क्यों कहा जाता है, ये उसका रीजन हो गया. यस. अब आप ये सोचोगे व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. रिमेंबर, जस्ट दिस इज अवर सेल, करेक्ट, एंड इनसाइड द सेल दिस इज अवर न्यूक्लियस. यू कैन से दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज अवर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड mitochondria, where ATP production takes place. This is Golgi apparatus. You can say this one is chloroplast, etc. Ribosome, mesosome, mesosome तो इतना नहीं, but lysosome, etc. ये काफी सारे cellular organelle हो गए सेल के अंदर. Now just say why this pathway terminal oxidation, also called electron transport chain or electron transport system, I'll tell you. See, why we called mitochondria as a powerhouse? Why we called mitochondria as a powerhouse of cell? Just because mitochondria has a three function. First, mitochondria produce ATP. Second, mitochondria store ATP, and then mitochondria transport ATP. करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया जनरली तीन फंक्शन करते हैं हमारी सेल में. माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. कौन सी प्रोसेस से? ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब्स साइकिल से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. फिर एटीपी को स्टोर कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, खुद के अंदर ही. फिर जिस सेल्यूलर ऑर्गेनेल को एटीपी की जरूरत है वहां पे एटीपी को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो ये देखिए, नाउ जस्ट इमेजिन इनसाइड द न्यूक्लियस there is a DNA is present,
and DNA wanted to multiply in number. DNA wanted to go for DNA replication to get double in number. So DNA will require energy. तो माइटोकॉन्ड्रिया में से एटीपी का ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस में. Just imagine chloroplast wanted to do the photosynthesis. So for the photosynthesis, chloroplast will need energy. So mitochondria will transport the energy from mitochondria to chloroplast. Golgi apparatus wanted to synthesize lipid, wanted to produce lysosome. So mitochondria will transport ATP to the Golgi apparatus. Endoplasmic reticulum wanted to do the protein synthesis. So mitochondria will transfer ATP to the endoplasmic reticulum. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एटीपी को प्रोड्यूस करना और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर करना और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट करना. द मेन पर्पस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एटीपी, स्टोर एटीपी एंड ट्रांसपोर्ट एटीपी टू ऑल द सेलुलर ऑर्गेनल which required continuation supply of ATP for doing particular work or particular function. तो इनमें से कोई भी ऑर्गेनल को अगर उनका खुद का फंक्शन करना है तो उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली पावर हाउस ऑफ सेल. तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा मैं आपको बताता हूं. सो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट ATP via इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को या तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है बाकी सब सेल ऑर्गेनल की तरह? वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब इलेक्ट्रॉन को कैरी करके या तो एटीपी को कैरी करके दूसरे सेल ऑर्गेनल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब किसकी यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल की. और मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल के कुछ नाम बताता हूं. यस, वन इज अ PQ स्टैंड फॉर प्लास्टोक्विनाइन. वन इज PC स्टैंड फॉर प्लास्टोसियानिन. आई होप सो आपको दिख रहा है यहां तक नीचे तक. जस्ट अ मिनट. सो वन इज PQ प्लास्टोक्विनाइन and one is PC stand for plastocyanin. And then you can use cytochrome. Cytochrome can be B, cytochrome can be B6, cytochrome can be F. Yes, it can be ubiquinone. अब मैं आपके सामने ये जो नाम लिख रहा हूं ये सब क्या है देखिए. प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसियानिन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, देन यूबिक्विनोन. ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है. ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. आप एक चीज समझ लो, मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ कार्टून्स ट्रांसफर करने. अगर कार्टून छोटे छोटे हैं, काफी कम है, तो आप अपनी एक्टिवा गाड़ी के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. लेकिन अगर कार्टून ज्यादा है तो आपको कोई ऑटो रिक्शा यूज करनी पड़ेगी. लेकिन कार्टून एकदम ज्यादा है तो आपको ट्रैक्टर या तो ट्रक का यूज करना पड़ेगा. करेक्ट है. सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है तो शायद PQ यूज होगा. इलेक्ट्रॉन कम है तो PC यूज होगा. इलेक्ट्रॉन काफी कम है तो साइटोक्रोम यूज होगा. इलेक्ट्रॉन उससे भी कम है तो यूबिक्विनोन होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए जो व्हीकल होता है उस व्हीकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल. और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कौन सी टेक्निक से वर्क करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से. ठीक है, ये आपको पर्पस समझ गया. इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मेन पर्पस क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ATP टू ऑल द सेल्युलर ऑर्गेनल. नाउ व्हाई वी कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? Why terminal oxidation is also known as oxidative phosphorylation? Because at this time there is formation of ATP molecule. Around 34 ATP molecules are produced during you can say electron transport system or electron transport chain.
एक चीज याद रखिए, व्हाई वी कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन आल्सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और ऑक्सीडेटिव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करना मतलब ऑक्सीडेशन करना, तो हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटीपी बना रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एक याद रखिए, एक ग्लूकोज में से टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। दो एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में मिलते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं, और 34 एटीपी सबसे ज्यादा एटीपी जो है 34 एटीपी वो हमें टर्मिनल ऑक्सीडेशन से मिलते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। Why we call respiratory chain? Because the chapter is respiration. Because the chapter is breakdown of complex molecule into simple energy rich compound. ग्लूकोज का ब्रेक करके हम एटीपी बनाते हैं, इसके लिए हम इसे रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। तो ये पांचों के पांचों आप अगर आपको नाम समझ गए होंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ गया होगा। Terminal oxidation means oxidation of coenzyme into their natural form is known as a terminal oxidation. At the time of glycolysis in Krebs cycle, hydrogens are removed. These hydrogens are accepted by nicotinamide adenine dinucleotide. After accepting hydrogen, they turn into nicotinamide adenine dinucleotide hydrogenase. And after accepting hydrogen by flavin adenine dinucleotide, they get converted into flavin adenine dinucleotide hydrogenase. But after some time, hydrogen is again removed. So NADH2 get converted into NAD and FADH2 get again converted into FAD. So previously they were NAD and FAD, and now again they become NAD and FAD. So conversion, oxidation of coenzyme into their natural form is known as terminal oxidation. What is the main purpose of this pathway? The main purpose of this pathway is to transport ATP molecule from mitochondria to all the cellular organelle which is required energy for doing particular role or particular function. And ATP can be transported, ATP means electron can be transported by electron transport chain or electron transport system. And for the transport of electron, we require electron carrier molecule, which may be plastoquinone, maybe plastocyanine, maybe ubiquinone, maybe cytochrome A, cytochrome B, cytochrome F, cytochrome B6, whatever. ये कितने काफी ज़्यादा होते हैं. And this is also called oxidative phosphorylation because in this pathway we are making 34 ATP molecule out of 38 ATP molecule from one glucose. It is also called respiratory chain. Now, I would like to tell you basically significance of respiration. So there are so many significance. I'll tell you 2-3 very important. First one, out of 38 ATP, 34 ATPs produce, yes, out of a 38 ATP molecule from respiration of a one glucose molecule. You can say from the respiration of one glucose molecule or oxidation of one glucose molecule, 38 ATPs are produced. But out of 38, 34s are almost produced by terminal oxidation. So this is very valuable. There is regeneration. There is regeneration of NAD and FAD as coenzyme. Correct? There is regeneration. जो NAD और FAD थे वो NAD और FAD में से NADH2 और FADH2 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर से वो NAD और FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं. Yes? Now one more. Energy produces in stepwise. So cell never damage. Correct? एनर्जी हमेशा यहाँ पे स्मॉल स्टेप वाइज प्रोड्यूस होती है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका. मान लो आपके प्लेट में 10 गुलाब जामुन है, ठीक है, और आपके पास एक डब्बा भरा हुआ है पूरा, और उस कैन में, उस टैंक में, उस डब्बे में आपके पास
10 से 20 गुलाब जामुन है, मान लो अगर 20 गुलाब जामुन आप आज ही खा लेते हो तो शायद आपकी शुगर काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप रोज 1 या 2 गुलाब जामुन खाते हो, स्टेप वाइज खाते हो, तो आपकी जो डिज़ायर है वो भी पूरी होगी और आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी और आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी भी नहीं। सो सिंपल लॉजिक क्या है, एटीपी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन वो सभी एट अ टाइम प्रोड्यूस नहीं होते, स्टेप वाइज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और स्टेप वाइज प्रोड्यूस होते हैं, इसके लिए कोई सेल डैमेज भी नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, एक और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इट produces water also. This water is called metabolic water. अब ये मेटाबॉलिक वाटर कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको अभी तक वो बताया नहीं था, मैं आपको अब बताता हूँ। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आप उस वक्त समझते नहीं और अब आप इजीली समझ जाओगे। सी, NAD after accepting hydrogen turn into NADH2, FAD after accepting hydrogen turn into FADH2, but this hydrogen was again removed. No, this hydrogen was again removed. So this hydrogen go to atmosphere and combined with oxygen. This hydrogen go to atmosphere and combine with oxygen and turn into H2O. This is called metabolic water. Why we call metabolic water? It is also called atmospheric water. इसके दो नाम है, मेटाबॉलिक वाटर और एटमॉस्फेरिक वाटर। अभी ऐसे नाम क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। Why we call metabolic water? Because this hydrogen and oxygen, actually hydrogen is produced by metabolism process. Yes, ये हमने रेस्पिरेशन किया, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म किया, उसके बाद ये हाइड्रोजन आया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाइंड होने के बाद वाटर बन गया, तो हमने इसे क्या कहा, मेटाबॉलिक वाटर। Why we also called ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेरिक वाटर? क्योंकि इस वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आया था, एटमॉस्फेयर में से आया था। That's why we also called it as a we called it as a atmospheric water. अब आप फिर से ये पूरा का पूरा पाथवे सिर्फ 2 मिनट में समझ लीजिए। Terminal oxidation is also known as electron transport chain, also known as electron transport system, also known as oxidative phosphorylation, also known as respiratory chain. These are 5 names can be useful for the explaining terminal oxidation. मैं आपको कुछ नाम explain करता हूँ, इनमें से सभी चीजें। Oxidation of coenzyme such as NAD and FAD into their natural form again turn into NAD and FAD. This is called terminal oxidation. At the time of glycolysis and Krebs cycle, hydrogen molecules are removed, and these hydrogen molecules are accepted by NAD and FAD. So after accepting hydrogen, NAD turn into NADH2 and FAD turn into FADH2. So from coenzyme they turn into active form of enzyme. Now after some time they again remove the hydrogen out and they turn from NADH2 to NAD, FADH2 to you can say FAD, and this hydrogen go to the atmosphere, combine with oxygen and turn into metabolic water or atmospheric water. The main purpose of this pathway is to transport ATP from mitochondria to all the cellular organelles where there is a need of energy, where there is a need of ATP molecule. And ATP can be transported by electron transport chain or electron transport system. And to use this system, we have to use electron carrier molecule, a type of molecule who can carry the electron from mitochondria to different cellular organelles. It can be the PQ, plastoquinone, it may be PC, plastocyanine, it may be UB, ubiquinone. It may be cytochrome A, B, cytochrome F, cytochrome you can say B6, and there is a formation of ATP molecule in this pathway. That's why we also called it as oxidative phosphorylation. 34 ATPs are produced in this pathway, and this pathway is related to oxidation of glucose into ATP molecule. That's why we also called it as a respiratory chain. These are some significance of respiration. Out of 38 ATP molecules, 34 ATP molecules are almost produced by this pathway. Regeneration of NAD and FAD into coenzyme, this is also takes place in this. Energy produces always in stepwise, so there is never you can say death of a cell never undergo damage. It produces metabolic water also. So this is about terminal oxidation
electron transport chain, electron transport system, oxygen to first position, respiratory chain. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही नीट से रिलेटेड लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जामिनेशन।